ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਥਿਊਰਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। The weight of a triangular lamina ABC is 9 grams. What additional weight should be placed at A so that new center of gravity divides the median through A in the ratio 3:4? ਇਹ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲੈਮਿਨਾ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲੈਮਿਨਾ, ਇਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 ਗ੍ਰਾਮਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ W weight ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਦਾ weight ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ weight W ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ W/3 weight ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ ਪਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ 9 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਇਦਾਂ weight ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਪਾਤਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੋ weight ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਧਾ 3 ਪਾ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਦਾ weight ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਨਫਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ weight ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ x ਦਾ, ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ weight ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ? ਉਹ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 3:4 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ। 3:4 ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਰੇ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ weight ਪਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਉਹ 3:4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਮੀਡੀਅਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ weight ਆਪਾਂ x ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ weight dx ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 weight ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, weight ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਹੀ ਓਵਰਆਲ weight ਆਊਗਾ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਥਿਊਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ weight ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੂਵ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ weight ਕਰੇਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਓ weight of resultant of weight of 3 at B and weight of 3 at C is, रिजल्टेंट जो है वो होगा weight 6 at D। इन दोनों रिजल्टेंट 6 होगा, पिछले थ्योरम में प्रूव किया है अपने। D की हैगा ए मिड पॉइंट ऑफ BC। चलो आ हो गया, आ दोने ये इक्विवेलेंट आ गई। ठीक है जी। अगे हुण आपां ने ओवरऑल weight नहीं कढना कि ओवरऑल weight कितना है, बस ये तो है कि हुण ਇਹਦਾ weight ਅਤੇ ਇਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ G ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3/4, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि AG/GD ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ
3/4 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਓ ਹੁਣ देखो 3 plus x into AG is equals to 4 6 into GD जिन्होंने ये गल नहीं समझ आई है कि मतलब उन्होंने पिछलियां थ्योरमां समझ नहीं आई जिन्होंने ये गल समझ आ गई तो वो मान सकते हैं कि पिछला कंसैप्ट उन्होंने समझ आया है ये कित्थों आया जी पैरल फोर्स का कंसैप्ट आप लाते आ रहे हैं जिवें ये दोनों मिड पॉइंट क्यों कहता आप दिस इंटू दिस इक्वल दिस इंटू दिस होगा 3 3 कट गया आ बराबर हो गया तो डी मिड पॉइंट हो गया रिजल्टेंट मिड पॉइंट पे आऊगा ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ P into AC Q into BC ਪਹਿਲਾ ਫੋਰਸ 3 plus x into AG 6 into GD ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 plus x upon 6 ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ 6 upon 3 plus x नीचे ले गए उधर ये आ गया AG upon GD ये आ गया 3/4 इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जी 24 equal to 9 plus 3x 15 equal to 3x तो x कितना आ गया 5 मतलब 5 ग्राम जिहड़ा हैगा आप एडिशनल वेट आप ए उपर रखांगे जिहड़ा फिर अपना ओवरऑल सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का वो 3:4 से डिवाइड करेगा चलो आ कंसैप्ट एक इस कंसैप्ट क्वेश्चन में एक कंसैप्ट हो रहा है जी जिस तरह क्वेश्चन है ने वो कंसैप्ट हैगा मूवमेंट का मूवमेंट अबाउट पॉइंट यह कंसैप्ट पढ़िया सी मूवमेंट दे विच आपां एक कंसैप्ट होर पढ़िया सीगा जी मूवमेंट अबाउट लाइन वो एक एक्सरसाइज सीगी मूवमेंट अबाउट लाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट लाइन हुण ये मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट लाइन वाला कंसैप्ट बहुत लोड़ पेगी बाकी क्वेश्चनों में जे आउंदा चंगी गल है जे नहीं आउंदा तो हुण देख लियो दोबारा एक दो तीन क्वेश्चन देखांगे आपां वो क्वेश्चन किवें देखो perpendiculars are drawn from the angular point ABC of a triangle to opposite side ABC. Another triangle is formed by joining the feet of these perpendiculars. If x, y, z be the distances of center of gravity of this triangle from the side ABC, prove that x upon a square cos b minus c, y upon b square cos c minus a, z upon c square cos a minus b। जो प्रूव करना होता आ जाएगा ये स्टेटमेंट ध्यान देखनी है जो कंसैप्ट है समझना ध्यान वो किवें करना आपां आ ट्रायंगल आ मान लो अपने को इधर ट्रायंगल बना लिया ए बी सी ये ट्रायंगल अपने को ए बी सी दिता कि है अपने ए तो डिस्टेंस दिते हुए आ ए डिस्टेंस हो गया आ बी डिस्टेंस हो गया बी सामने आ डिस्टेंस जो है वो सी ये गिवन परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स ए बी सी ऑफ ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ कितने एंगुलर पॉइंट्स किहड़े हुंदे ने जिथे एंगल बनदा मतलब ए बी सी इन्हां तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किते एक आ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता एक आ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता एक आ परपेंडिकुलर ड्रॉ तिन्ने परपेंडिकुलर एक पॉइंट तो मीट करनगे इहनूं आपां ऑर्थो सेंटर भी कहने आपां परपेंडिकुलर ज्वाइन करते जी उस तो बाद another triangle is formed by joining feet of these perpendicular जिथे perpendicular दा पैर आ सी आ perpendicular मारिया ये perpendicular पैर आ डी इथों perpendicular मारिया अपने ये perpendicular पैर ई हो गया इथों perpendicular मारिया ये एफ हो गया जिहड़े perpendicular दे फीट्स ने इन्हां नूं ज्वाइन करके एक ट्रायंगल होर बनाया आपां
इन्होंने ज्वाइन करके एक ट्रायंगल आपने होर बनाया। हुण दिता की होया आपां जेडे एक्स वाई जैड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रैविटी, जो ए ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रैविटी है, इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रैविटी मतलब कितने भी ला लो, मान लो आ सेंटर ऑफ ग्रैविटी है इस ट्रायंगल, जो इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रैविटी है, ये पॉइंट से मान लिया अपने, एदा डिस्टेंस एक्स वाई जैड भी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रैविटी फ्रॉम साइड ए बी सी, जिहड़ी ए साइड आ ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी का डिस्टेंस ए तो आ डिस्टेंस ए एक्स, जिहड़ा बी तो डिस्टेंस हैगा ये परपेंडिकुलर है जी, आ डिस्टेंस वाई है, जिहड़ा सी तो डिस्टेंस हैगा यह डिस्टेंस की है Z। ये देख लियो ध्यान, दोबारा डायग्राम पढ़ ली आप। जो डायग्राम ट्रायंगल दिता होया सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किते तिन्ने, जिथे फीट हैगा जी उत्थों ट्रायंगल बना लिया। ये ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी है, सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी है, इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी है, ਇਹਦਾ डिस्टेंस A तो X आ, B तो Y आ, C तो Z आ डिस्टेंस दिते हैं आप, ये सारे डिस्टेंस अपन गिवन है। तो आप रिलेशन प्रूव करना कि जो X होगा X अपॉन A स्क्वायर कॉस B माइनस C, Y अपॉन B स्क्वायर कॉस C माइनस A, ये शो करना अपन, जो शो करांगे आप ये कंसैप्ट किमें होगा देखो ध्यान नाल। पहला दस दवा कि मूवमेंट किमें कढ़ना होंदा अपने, आह लाइन आ जी, आ फोर्स आ, इस फोर्स का इस लाइन के अबाउट ये मूवमेंट किमें कढ़ना होंदा वो देख लो। पहली गल जे मूवमेंट अबाउट लाइन पता होवे, जिहड़ी फोर्स लैनी आपां ने वो प्लेन, जिस लाइन जिस प्लेन च आपां लाइन बनाई हैगी है, जिस प्लेन दे विच आपां लाइन बनाई हैगी ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर होंदी है फोर्स। फोर्स जिहड़ी हैगी है जिस आ प्लेन आ लाइन कित्थे बनाई है आपां बोर्ड ते बनाई है, बोर्ड प्लेन हो गया, जिहड़ी फोर्स होगी ये बोर्ड दे परपेंडिकुलर होंदी है, आ परपेंडिकुलर बनाई है आपां, आ परपेंडिकुलर फोर्स होगी। तो फोर्स इनटू लाइन तो डिस्टेंस, आ डिस्टेंस फोर्स इनटू मान लो डिस्टेंस लै लईए ए बी, ये मूवमेंट होंदा, ये पहला पढ़िया है जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द लाइन, ये मूवमेंट होंदा जी अपने को। सो देखो रब कर दें, हुण इहदे विच आ सेंटर ऑफ ग्रैविटी है, इस ट्रायंगल आ ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रैविटी है। तो की किया आपने, ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रैविटी की हुआ, इस ट्रायंगल का वेट जो है आप W सपोज कर लिया, लेट वेट ऑफ ट्रायंगल DEF ये W सपोज कर लिया। जे ट्रायंगल का वेट W हैगा अपने को, तो इन्हों अपने कर सकते हैं कि इस वेट को आपां 3 इक्वल पार्ट्स वर्टिस के ऊपर लिख सकते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं आप। देयरफॉर किहड़े-किहड़े 3 इक्वल पार्ट्स की, W/3 वेट एट A, W/3 D, सॉरी अद्धा घंटा लगूगा वेट का, W/3 वेट एट E एंड W/3 वेट एट F। ये W/3 वेट च आपां तोड़ सकते हैं, ये पहला आपां पढ़िया है।
तो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बना रहा समझाने वास्ते W/3 वेट आ हो गया W/3 वेट इधर होगा W/3 वेट इधर होगा तीन वेट होंगे इधर पासे हुण करना कि मैं डायग्राम किद्दां सपोज करनी है जे मान लो आह शेप लै ली अपने मान लो ये पैरेललोग्राम वेट किद्दां वैसे डायग्राम दे वेट किद्दां बना रहे जिवें डायग्राम आ वेट हैंग कर रहा इत्थे वेट इदां लमकाया इदां वेट लमकाया इदां वेट लमकाया वेट अपनी मर्जी है जे समझ आ रही है गल जिहड़ा आ वेट आपां हैंग किया मान लो वेट आपां लमका रहे हैं आ वेट की हैगा जिहड़ी डायग्राम दे जिस प्लेन दे विच आपां ट्रायंगल बनाया उसी प्लेन च वेट लिया इदां वेट भी तो इदां ही है पर मैं किद्दां लै रहा हुण इस तरह वेट जिस तरह मर्जी लै सकदा मर्जी है अपनी ये किवें लै रहा हैगा जिवें आह पैरेललोग्राम वेट मैं इदां मान रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब जो W/3 वेट लै रहे हैं इदां लै रहे हैं इत्थे W/3 इत्थे W/3 इत्थे W/3 इत्थे W/3 इदां वेट लैने अपने हुण इदां वेट क्यों लैने बिकॉज मूवमेंट अबाउट लाइन दे विच जो फोर्स हुंदी हैगी आ ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लाइन चाहिए है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लाइन जिथे लाइन बनाई है परपेंडिकुलर चाहिए है तो पहली गल ध्यान रखनी है जिथे मूवमेंट वाला कंसैप्ट लाना हैगा आपां ने उहदे विच की हैगा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ वेट ਹੋਊਗਾ ਉਹ परपेंडिकुलर ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ मूवमेंट ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿੱਥੇ मूवमेंट ਦਾ ਕੰਸੈप्ਟ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ मूवमेंट ਦਾ ਕੰਸੈप्ਟ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ वेट ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ W/3 ਆ ਇਹ W/3 ਆ ਇਹ W/3 ਆ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ वेट है वो इदां ने ये गल पहली गल ध्यान रखनी है हुण ये गल उहनूं समझ आऊगी जिन्हें मूवमेंट का कंसैप्ट पता है कि मूवमेंट दे विच की हुंदा मूवमेंट अबाउट लाइन दे विच आ लाइन दे परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए प्लेन जिस प्लेन च आपां लाइन बनाई है उहदे परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए हुंदी है परपेंडिकुलर इस करके ये गल ध्यान रखनी है कि फोर्स परपेंडिकुलर चाहिए है तो आ वेट आपां ने परपेंडिकुलर लैणे तां पहली गल ये ध्यान रखनी है बाकी मूवमेंट का कंसैप्ट वो आ जाऊगा देखो किवें हुण लै रहे हैं आपां मूवमेंट अबाउट लाइन BC मूवमेंट अबाउट लाइन BC लिया आपां BC दे अबाउट मूवमेंट कट रहे आपां हुण आ फोर्स विचों पास कर रही है जे विचों पास करे तो मूवमेंट कितना हो जाएगा 0 W/3 × 0 डिस्टेंस 0 हो गया ना हुण आ फोर्स की है देखियो ध्यान नाल जिहड़ी आह फोर्स हैगी आ इदां फोर्स लाइन यह है जी लाइन यह तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ये अपने को मूवमेंट आऊगा इस केस मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा जी ये कन्फ्यूजन हो जाएगी जी एक डायग्राम होर बना लियो सिर्फ मिड पॉइंट परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं कहा परपेंडिकुलर सीगा जी ये कहा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी अपने कहा परपेंडिकुलर सिर्फ वो दिखा रहे हैं जी आ ट्रायंगल आ डी पॉइंट सी आ ए सी आ एफ सी इत्थों परपेंडिकुलर वेट भी दिखाने लोड़ नहीं हैगी जो वेट दिखाई देने आप ये W/3 इत्थों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आप वेट कितना हो गया W/3 फोर्स W/3 है इस लाइन के अबाउट कट रहे हैं मूवमेंट आप जिस लाइन के अबाउट मूवमेंट कट रहे हैं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस F इनू H मान लो ये आएगा W/3 फोर्स इंटू डिस्टेंस FH और डिस्टेंस FH हो गया बस ये गल्लां ध्यान रखनी है ये डिस्टेंस कड्डांगे बाद चों आपां हुण एक आ वेट रह गया इत्थे W/3 वेट सी ध्यान रखना वेट की हैगा परपेंडिकुलर टू प्लेन हाँ
ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस EI। ये मूवमेंट का कंसैप्ट होंगे कि जो फोर्सिस का मूवमेंट कट रहे हैं अबाउट लाइन वो किहदे बराबर होंगे जी, जो इन्हां दा रिजल्टेंट है ਉਹਦੇ मूवमेंट दे ਉਹਦੇ मूवमेंट अबाउट दैट लाइन बराबर होंगे। जो फोर्स का मूवमेंट होंगे अलजैब्रिक सम रिजल्टेंट के मूवमेंट बराबर होंगे। ਇਹਦਾ मूवमेंट कितना आऊगा, आ डिस्टेंस हुण लोड नहीं, ये आपां x मन्निया है ते वेट कितना है उरे W, W बनेगा। ये किहदे बराबर आऊगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस की है इसके x है। बस यही काम जो उरे तक हैगा ये BSc वाला। बाकी FH किवें कढ़ना, EI किवें कढ़ना, थोड़े पुराने कंसैप्ट ने जी। आपां FH कढ़दे हैं जी ते बाद चों EI कढ़ांगे जी। FH कढ़ रहे हैं, देखो ये FH वास्ते इनू ज्वाइन कर लें, मैंने ज्वाइन किया आपां सारा। आ डिस्टेंस कढ़ना आपां कल्ला, आ डिस्टेंस फाइंड करना कि डिस्टेंस कितना होगा। आ डिस्टेंस A है जी सारा, आह B है जी, आह C है। ਹੁਣ देख लो कि आ डिस्टेंस किवें निकलूगा। ट्रायंगल दे विच आपां नूं एक एंगल पता होवे, ये पहलां कीतियां गल्लां सारियां। कोई भी एंगल पता हो फिर आपां आ ट्रायंगल ले लईए, सौखा रहूगा क्योंकि इस ट्रायंगल दे विच एक एंगल पता, आ साइड लभनी आपां FH, एक एंगल पता। हुण आ साइड जिहड़ी हैगी आ ये फाइंड करते हैं पहलां। जे ये साइड निकल जाए फिर अपना काम सॉल्व हो जाऊगा। पहलां आ साइड कट रहे हैं आपां FB, ये नंबरिंग 1 पा के रख लो। ये अगे इस तो बाद 10th लैवल का काम है थोड़ा, जिन्ना जिहड़ा स्ट्रोंग होगा जी, जिन्नी जिन्हें मेहनत पहलां की हुई हैगी है उन्ना फायदा होगा जी। मैं ले रहा जी इन ट्रायंगल BFC। जो BFC ट्रायंगल लिया, BFC आप ट्रायंगल लिया, ये एंगल पता आपां नूं, एक साइड पता। इत्थों पहला BF कड्डांगे, BF की आऊगी, एंगल B है, बेस अपॉन हाईपोटेन्यूज कॉस होंदा हैगा तो BF बनेगा A cos B। ये गल समझाई हो, BF हो गया A cos B। हुण BF निकल गया, फिर आप लवांगे इन ट्रायंगल BFH। लभना की हैगा आपां ने BF बटा BH BFH लभना ते BF पता आपां FH अपॉन BF, FH अपॉन BF लभना आपां ने। ये की बन जूगा परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज, ये बन गया साइन B। हुण FH आ गया, FH कितना आ गया, BF की वैल्यू भरती A cos B sin B, FH तो निकल गया जी। हुण EI लभना आपां ने, बिल्कुल सेम इदां लभ लांगे EI किवें लभांगे आपां, पहला लवांगे इन ट्रायंगल साइड लभनी आपां ने, ए ट्रायंगल लवांगे फिर C पता, पर ये ट्रायंगल ना आ साइड पता ना आ साइड पता। पहला आ साइड लभांगे, ये साइड किवें लभांगे, इहनूं ज्वाइन कर लिया। इन ट्रायंगल BEC ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ही है जी, BEC ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ परपेंडिकुलर है जी। तो आपां नूं पता है आ लभनी है EC कितना होगा, बेस अपॉन हाईपोटेन्यूज कॉस बनेगा, ये बनेगा A cos C। फिर लिया आपां इन ट्रायंगल आही वाला CEI ट्रायंगल लिया CEI, ये विच अपने कोल EI लभना, EI परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज EC, ये भी उवें साइन बन गया साइन C। तो इत्थों EI कितना बन गया, अपने को वैल्यू भरती A cos C sin C। बाकी पुराने काम हुण इह भरांगे सारा, आपां वो भर रहे हैं। देखो therefore 1 becomes 1 आ गया अपने को W/3 इंटू FH कितना हैगा A cos B,
साइन बी प्लस W/3 इंटू EI, ये आ गया A cos C साइन C इज इक्वल टू WX, ये आ गया। ये हुण लोड़ नहीं हैगी, मैं रब कर रहा, इनू सॉल्व करना जी। आप W कैंसल कर दो, ਜਾਂ W/3 A कॉमन कढ़ लिया आप, ये बन गया जी, देखो समझ आता, साइन 2B/2 साइन 2C/2 इज इक्वल टू WX। W कैंसल करो, साइन 2B की होंगे 2 साइन B cos B अपॉन 2π कैंसल हो जाएगा, आही चीज़ बन जाएगी जी, ये भी आही चीज़ बन जाएगी। ये 2 बाहर कढ़ लिया, 1/6A साइन C माइनस साइन D, ये होंगे जी 2 साइन C प्लस D/2 CD फॉर्मूला इंटू कॉस C माइनस D/2। ये क्यों कर रहे हैं, जो प्रूव करना वो वास्ते कर रहे हैं, X। ये 2 कैंसल हो गया, ये आ गया 1/6A, ये बन गया साइन B प्लस C, ये आ गया इंटू कॉस B माइनस C X। ये अपन पता है कि तिन्ने एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होंगे, तो इतों B प्लस C कितना आ गया 180 माइनस A। इस वैल्यू भरती X इक्वल्स टू 1/6A साइन 180 माइनस A कॉस B माइनस C, या तो साइन 180 माइनस थीटा होंदा हैगा साइन थीटा। ये आ गया X इक्वल टू 1/6A साइन A, ये आ गया कॉस B माइनस C। ये ध्यान च होवे कि A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, इनू इक्वल टू K मान लिया C। इथों साइन A कितना होगा A/K, ये वैल्यू भरती है 1/6A स्क्वायर बाय K कॉस B माइनस C। ए स्क्वायर क्यों आ गया, A/K पर अपन A स्क्वायर बन गया, हुण X निकल गया, Y का फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तां ही करके आप हुण सिमिट्री लावांगे, तो सिमिट्री यूज करांगे। ये पहला ही पढ़ा है, मैं सिमिलरली कढ़ांगे आप। सिमिलरली की बनेगा y इक्वल टू 1/6, A नू B च कन्वर्ट कर लांगे, K तो K रहूगा, B नू C च, C नू A च, एंड Z आऊगा 1/6, B नू C च भरांगे जी, ये पिछे सिमिट्री करते आ रहे हैं आप, ये A भरांगे, ये B भरांगे, ये आ गया। ये तुसीं वैल्यू कढ़ लो कि X अपॉन A स्क्वायर कॉस B माइनस C, ये बनूगी 1/6K, आटम चक के ले, ये वैल्यू कढ़ लवो y अपॉन B स्क्वायर कॉस C माइनस A, ये बनेगी 1/6K। एवं ये चक के इधर लियाओ, तो Z अपॉन C स्क्वायर कॉस A माइनस B, ये बनेगा 1/6K। तिन्ने इक्वेट करते आप आपस, तिन्ने राइट हैंड साइड बराबर, तो लैफ्ट हैंड साइड पक्का बराबर होएगी। Therefore x upon A square cos B minus C, y upon B square cos C minus A equal to Z upon C square cos A minus B। ये चीज़ आप प्रूव करनी सी। मेन ये मूवमेंट अबाउट लाइन का कंसैप्ट है, तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी का कंसैप्ट आ जी। बाकी 10th क्लास का काम सीगा जी। एक न्यूमेरिकल हो देखना, वो देखो, एक गल रह गई सी न्यूमेरिकल दे विच कि आपां मूवमेंट का कंसैप्ट क्यों लाया जी।
मूवमेंट का कंसैप्ट तां लाया बिकॉज इस ट्रायंगल च सेंटर ऑफ ग्रैविटी का डिस्टेंस पुछया सी, जिथे सेंटर ऑफ ग्रैविटी का डिस्टेंस पुछया होवे लाइन तो या गिवन होवे, उत्थे मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट लाइन का कंसैप्ट लावांगे। जिवें नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, ये भी डिस्टेंस की गल आ रही है, ये भी ये वांगू ही है। तो देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, देख लो। If a piece of wire is bent into the shape of an isosceles triangle whose sides are A, B, C, show that distance of center of gravity from base is A by 2 under root 2A minus B upon 2A plus B। जो है देखांगे। हुण एक वायर नूं बेंड किया हैगा, जे ध्यान दे विच होवे, जे एक वायर नूं आपां ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप च बेंड किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंदा जिहदी दो साइडां बराबर होंदी, दित्तियां होईयां दोने साइडां बराबर ने जी, बेस कितना हैगा दा बी है। वैसे जे ध्यान च होवे सेंटर ऑफ ग्रैविटी जे आपां रॉड्स लवांगे, तिन्ने वायर नूं बेंड किया तो 3 रॉड्स हो गई, ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी किसी मीडियम के इन सेंटर पर एक्ट करता सीगा, सेंटर ऑफ ग्रैविटी। चलो जो भी है, ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी पता नहीं कितने होगा, और सेंटर ऑफ ग्रैविटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ सेंटर ऑफ ग्रैविटी का बेस आ बेस हो गया, आह डिस्टेंस फाइंड करना कितना होगा, जिथे डिस्टेंस गिवन होवे या फाइंड करने वास्ते क्या कि मूवमेंट ऑफ फोर्सिस अबाउट पॉइंट लावांगे। वो किवें लाउणा, बाकी तो काम सौखा ही है, वो लाने जी। वो किवें देखो, पहला आपां तिन्ने पॉइंट ते फोर्सिस लभदे किन्नियां किन्नियां बनणगीਆਂ। हुण ध्यान दे विच होवे आह लेंथ गिवन आ, आह लेंथ गिवन आ, आह लेंथ गिवन आ, तो इक्को वेट नाल आपां तिन्ने वेट कट सकदे। पिछे गल कीती हुई आपां ने, वो किवें सी कि लैट कर लिया, लैट WB दा वेट पर यूनिट लेंथ। हुण इधर क्वेश्चन पहला बहुत करते जा रहे हैं, अपने पता होगा। देयरफॉर वेट ऑफ AB ये कितना होगा AW, वेट ऑफ AC ये कितना होगा जी, ये भी AW होगा, वेट ऑफ BC ये कितना होगा जी अपने को BW। ये वेट देते हैं, तो इन्ना वेट आ गया जी। तो जो भी है सेंटर से एक्ट करने के वेट, भी सेंटर से एक्ट करो, भी सेंटर का भी सेंटर से एक्ट करो, कितने सेंटर पता नहीं कितने होगा, सेंटर से एक्ट करेगा। हुण ये वेट नूं कितना होया आपां कि रॉड के एक सिंगल वेट नूं इत्थे 2 वेट च कन्वर्ट कर सकते हैं, अद्धा अद्धा करके। जे इहदा वेट W हैगा तो अद्धा अद्धा करके आपां वर्टिसिस ते वेट कर सकते हैं। ये थ्योरम च कीता होया आपां, दैट इज नाले पर दैट इज वेट AW by 2 at A and वेट AW by 2 at B। ठीक है जी, AW 2 वेट करते, 2 हिस्से करते, किहड़े किहड़े, एक तो इत्थे करता आपां ने AW by 2, एक इत्थे करता आपां ने AW by 2। इदां कर सकते हैं, पिछे थ्योरम च कीता सी। द AC का वेट भी तोड़ सकते हैं, दैट इज वेट AW by 2 at A and C रिस्पैक्टिवली। A and C ऊपर आऊगा, ये ऊपर भी प्लस AW by 2 होर आ गया, इधर भी AW by 2 होगा। तो इनू लिख सकते दैट इज वेट BW by 2 at B and C रिस्पैक्टिवली। इधर भी BW by 2 आ गया होर वेट, इधर भी BW by 2 आ गया वेट। तो ओवरऑल की बन गया, देयरफॉर वेट AW एट A, ये जोड़ के कितना बन गया AW। मैं सीधा फिर इत्थे AW पा रहा, ए ते बन गया, तो वेट बी ते कितना आ गया A plus BW by 2 कॉमा A plus BW by 2
एट B एंड C रिस्पैक्टिवली। दोनों सेम बंद ने, ये लिखता जी आपने A प्लस B W/2, ये भी कितना हो गया A प्लस B W/2। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ weight ਐਡ ਹੋਣਗੇ, therefore ਸਾਰੇ weight ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, 3 weight ਨੇ, ਤਿੰਨੇ weight ਐਡ ਕੀਤੇ ਬਣੇਗਾ therefore AW BW at G, that is 2A plus B W at G। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2A plus BW ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, AW ਇਹਦਾ, AW ਇਹਦਾ, BW ਇਹਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਜੋੜਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, G ਤੇ। G ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, G ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। डिस्टेंस फाइंड करना, मूवमेंट का कंसैप्ट लावांगे। फोर्सा किद्दां मन्नांगे, A प्लस BW/2 इदां लैनी है आपां फोर्स, इदां मननी है, इदां मननी है। तो फॉर्मूला की होगा अपने कोल जी, सेंटर ऑफ ग्रैविटी G हो गया अपने को, तो मूवमेंट अबाउट BC लवांगे, बिकॉज डिस्टेंस कटना अपने लवांगे मूवमेंट अबाउट BC। बस यही कंसैप्ट आ, बाकी तो सौखा ही है। तो मूवमेंट अबाउट BC लिया अपन, मूवमेंट अबाउट BC की आऊगा, ए फोर्स विचों निकल रही है 0 हो जाएगा, ए फोर्स विचों निकल 0 हो जाएगा, मतलब A प्लस B W/2 इंटू 0, A प्लस B W/2 इंटू 0। आ फोर्स इंटू डिस्टेंस, आ फोर्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, आ D हो गया पॉइंट, तो ये आऊगा AW/2 इंटू AD। ये तिन्ने फोर्सेज का मूवमेंट हो गया, यदा अलजैब्रिक सम रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होगा। रिजल्टेंट कितना अपने को 2A प्लस B W इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना इस केस X, ये बराबर होंगे। बस हुण AD रह गया, AD फाइंड करांगे, उत्थों X निकल जाएगा। हुण AD किद्दां फाइंड होगा, ट्राइंगल दी प्रॉपर्टीज ने, मतलब देखो आ साइड के बराबर, आ साइड कॉमन होगी, आ दोनों एंगल 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने आपस में। जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने, तो आह पार्ट यह पार्ट देख लूगा CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप लिखांगे नाउ BD ते DC बराबर ने, बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये कॉन्ग्रुएंट ने दोनों ट्रायंगल। तो BD कितना हो गया, BD हो गया अपने को B/2, अद्धा हो जाएगा, B/2 हो गया। और डिस्टेंस कटना बस AD, हाईपोटेन्यूज पता, बेस पता, परपेंडिकुलर लभ लांगे आप। AD कितना होगा, √of AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, पाइथागोरस ला के। हुण AB अपन पता कितनी होगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4, ये बन गया 2A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नीचे 2 है, ये AD निकल गई अपनी। Therefore 1 becomes, ये 1 च वैल्यू भरती, आ 0, ये बन गया AW/2 इंटू AD कितना कटिया अपने 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 2A प्लस B W इंटू X, W कट गए। बस ये सॉल्व कर लवांगे, जो आ गया आंसर। इत्थे थोड़ी गलती हुई है जी, जी फोर्स सी वो AW सी, इतने अपॉन 2 गलत पै गया, इतने भी अपॉन 2 नहीं आना सी। चलो ये X कटना आप एक पासे ले आओ जी। Therefore
एक्स आ गया अपने को a/2 4a² माइनस b² अपॉन 2a + b, मतलब a/2 उपर फैक्टर बना लो 2a + b 2a - b, यह टर्म रूट्स लेके जावांगे तो स्केयर बन जाएगा जी। ये आ गया a/2 2a - b अपॉन 2a + b। ये जो मूवमेंट का कंसैप्ट क्यों लाया, बिकॉज डिस्टेंस कढ़ने वास्ते क्या सीगा ਆਪਾਂ जे डिस्टेंस कढ़ना हो मूवमेंट अबाउट लाइन का कंसैप्ट आऊगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी च। चलो ठीक है, क्वेश्चन सीगे जी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो, बाकी नैक्सट लैक्चर फिर आप नैक्सट टॉपिक शुरू करांगे जी। थैंक यू।